Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to talk about this very popular essay written by J.S. Mill on liberty, an important topic for Lucknow University semester 6, functional skills in language and literature. You can watch some other important videos of the same topic in the playlist. The link of this I'll provide you in description. आइए जानते हैं इस essay के बारे में. This got published in 1859. The very popular English philosopher J.S. Mill wrote it and it applies his ethical system of utilitarianism. इस पूरे essay में वो बात करते हैं utilitarianism के बारे में और liberty के बारे में. Liberty यानी कि आज़ादी किस तरीके से society और state और हर individual के लिए बहुत ज़रूरी है. He describes the relationship between authority and liberty. Let us know about this person. Had a lifespan from 1806 to 1873. Popular English philosopher, political economist, politician, and a civil servant. I'll say he contributed in a great manner to social theory, political economy. और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रहा लिबर्टी को डिफाइन करने में. लिबर्टी किस तरीके से जस्टिफाई करती है हर इंडिविजुअल की फ्रीडम, लेकिन वो फ्रीडम भी बिल्कुल कंप्लीटली एक अथॉरिटी ना प्रोवाइड करे किसी पर्सन को. उतनी अथॉरिटी रहे द पर्सन इज नॉट मेकिंग एनी harm to someone. So I'll say he is known very much to make us know the standards for the relationship between authority and liberty. 3 लेवल्स के आर्ग्यूमेंट उन्होंने किए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल टायरनी. और वो कह रहे हैं कि टायरनी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है जिसको अवॉइड किया जाना चाहिए इन एनी काइंड ऑफ लिबर्टी. He held that an individual's total autonomy must be maintained provided that their ideas or deed do not cause harm to others. आप किसी को भी फ्रीडम तो दे रहे हैं लेकिन इतनी फ्रीडम भी ना हो कि पर्सन सेज कि आई वांट टू मर्डर समवन, तो ये मेरी फ्रीडम है, ये मेरी लिबर्टी है, I'll do that. Unless and until it is not making any harm to someone, then it is called a true liberty. अब बात करते हैं यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव की. क्या होता है यूटिलिटेरियनिज्म? This is used by Mill to defend the worth of liberty. लिबर्टी की वर्थ ही हमें तब पता चलती है जबकि एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव हो. यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आप अपनी लिबर्टी को एक यूजफुल डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं. His essay aims to demonstrate the advantages of liberty for each individual and for society. लिबर्टी ऐसी होनी चाहिए कि इंडिविजुअल्स के लिए भी बेनिफिशियल हो और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो. In particular, Mill makes a connection between liberty and the capacity to advance and prevent social stagnation. लिबर्टी किसी भी तरीके से ऐसी ना हो कि सोसाइटी को स्टेगनेंट कर दे, सोसाइटी को एडवांस होने से रोके या फिर किसी इंडिविजुअल को किसी तरीके का हार्म पहुंचाए. इसके बाद वो बात करते हैं कि टायरनी किस तरीके की होती है. 2 तरीके की होती है. एक तो गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फोर्सफुली अप्लाई करे. सेकेंड इज टायरनी ऑफ मेजॉरिटी. टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का मतलब है सोशल टायरनी. सपोज you want to watch a movie, I'm not taking name of any particular movie, suppose there is a movie called ABC and that you want to watch, लेकिन पूरी सोसाइटी में एक notion है कि this movie is not good and if you watch it people will mock you. No matter your choice can be different from others, but out of the fear of that tyranny of majority, you are not being able to watch it, or even if you have watched it, you are not being able to share the fact. So that is called tyranny of majority. Tyranny of majority को बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस बताया, because this is the kind of peer pressure जो आपको कुछ ऐसा करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, किसी के लिए harmful नहीं है, but only because of the peer pressure you are not able to do that. इसके बाद वो कहते हैं कि सबको राइट्स होने चाहिए अपने आइडियाज को एक्सचेंज करने के, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं. लेट अस सी. फर्स्ट, द अनपॉपुलर व्यू पॉइंट माइट बी एक्यूरेट. राइट, ऐसा हो सकता है कि एक व्यू पॉइंट है जो कि अनपॉपुलर है, बट हो सकता है कि वो अनपॉपुलर व्यू पॉइंट सही हो. सेकेंड, इफ द ओपिनियन इज इनकरेक्ट, मान लीजिए कि वो ओपिनियन इनकरेक्ट है, चैलेंजिंग इट वुड हेल्प पीपल कॉम्प्रिहेंड देयर ओन बिलीव्स. अगर
अनपॉपुलर बिलीफ को प्रोपगेट किया जाएगा, तभी तो लोग आराम से डिस्कस कर पाएंगे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, राइट। तो एक अनपॉपुलर बिलीफ यानी कि लोगों की भीड़ से, क्राउड से हटकर अगर कोई अपने व्यू पॉइंट देना चाह रहा है तो उस पर्सन को एक कंप्लीट फ्रीडम फील होनी चाहिए। ऐसी सोसाइटी हमें क्रिएट करनी है। अपने ऐसे को उन्होंने ओपन किया बाय राइटिंग दैट हमेशा देयर इज अ स्ट्रगल बिटवीन अथॉरिटी एंड लिबर्टी। एक अथॉरिटी रहती है किसी गवर्नमेंट की टायरनी है तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो गई, और कई बार वो सोशल टायरनी होती है। लेकिन टायरनी और लिबर्टी के बीच में हमेशा एक टग वॉर चलता रहता है। दो मैकेनिज्म्स बताए उन्होंने ये टग वॉर हैंडल करने के लिए। नेसेसरी राइट्स सभी सिटीजन्स को दिए जाएं और राइट्स और ड्यूटीज फॉलो किए जा रहे हैं नहीं, उसके लिए एक चेकलिस्ट हो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स शुड बी देयर। मिल कहते हैं कि एक सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए हर पर्सन के लिए, लिबर्टी कितनी है और कितनी रिस्ट्रिक्टेड है। The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. अगर आपके ऊपर कोई रूल अप्लाई किया जाता है ना फोर्सफुली, सपोज एक रूल ही है स्पीड लिमिट का, उसको अप्लाई किया जाता है जिससे कि आप किसी को हार्म ना पहुंचाए, तो तब आप नहीं कह सकते कि ये तो मेरी फ्रीडम मेरी लिबर्टी होनी चाहिए, मैं किसी भी स्पीड पर ड्राइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant over himself, over his body and mind. The individual is sovereign. हर इंडिविजुअल एक यूनिक पर्सन है और उसका खुद पर पूरा पूरा राइट है अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ क्या क्या करना चाहते हैं, लेकिन वही इंडिविजुअल किसी और की लाइफ को हार्म ना करे। ऐसे रूल्स का क्रिएट होना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं। द एबिलिटी टू थिंक एंड फील फ्रीली शुड बी देयर इन द सोसाइटी। दिस आल्सो अप्लाइज टू द फ्रीडम टू एक्ट ऑन सच थॉट्स और द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने की कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए। द राइट टू फॉलो इंटरेस्ट्स इवन दोज दैट आर लेबल्ड इमोरल so long as they do not damage others। हमें कुछ भी शौक है, उन अपने इंटरेस्ट्स को, शौक को प्रैक्टिस करने का हमें पूरा राइट होना चाहिए। एंड नो वन हैज गॉट द राइट टू टेल अस दैट दिस इज इमोरल। Unless and until our immorality is making harm to someone, we are not supposed to be restricted by others. Next, the ability to get together और लोगों से मिलना, parties करना, as long as all parties are of legal age, are not being compelled to do so and no one is harmed। कहीं भी मिलना, कहीं भी जाना, किसी से भी बात करना, उसके लिए हमें कोई कंपेल नहीं कर सकता है किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है। So here he discusses what he believed to be the three fundamental rights in order of the importance of liberty। इस ऐसे को बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था बिकॉज जेएस मिल ने कंप्लीटली सरफेस लेवल की बात की है। he has been overly vague। he just talks about rule should be like this, rule should be like that, but not given any example or any clarity। और पूरा emphasis जो है वो इंडिविजुअल्स पर है rather than the society, rather than the government। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए कमेंट्स में। अकॉर्डिंग टू मिल, सोसाइटी हैज द पावर टू डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स व्हेन इट रन्स काउंटर टू व्हाट द मेजॉरिटी वांट्स, इट erodes social cohesiveness, it causes harm to others or all। एक बार इस ऐसे में मिल ने टायरनी की बात की है और बताया है कि एक टायरनी बहुत ही वर्स्ट या डेंजरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग? The majority opinion is not necessarily right। जरूरी नहीं है कि 99% लोग कुछ सोच रहे हैं कि वो सही ही हो। They are of a lower, less intelligent class। The majority is trying to hurt the minority। They have no absolute certainty। They need to listen to others। The majority is always wrong। इनमें से क्या ऑप्शन सही है about the opinion of majority? That you need to tell me in comments।
I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.